Good morning, friends. This is Chandra Ratan, and today we are going to discuss how to solve numericals based on measurement of national income. In previous video, we have learned how to calculate national income using three methods separately. These methods are output method, which is also known as value added method, then income method, and final expenditure method. So today we will discuss how to solve a numerical based on these three methods. You are given a numerical here. In this numerical, we have to calculate national income by expenditure method. So let us start with expenditure method first. National income calculate करना है, that means NNP at FC, ये हमको कैलकुलेट करना है. और जो आइटम्स गिवन है, these are, let us first see which formula we should use in this case. NNP at FC आपको निकालना है और कुछ आइटम्स गिवन है. And in this method we know how to write formula. We discussed in a previous video that when we use expenditure method, we calculate GDP at MP, and components of GDP at MP are private final consumption expenditure, then government final consumption expenditure, then gross domestic capital formation, and then net export. These are components of GDP at MP when we use expenditure method. And we know how to arrive at NNP at FC with the help of GDP at MP. These are components of GDP at MP. So you can say this is GDP at MP, and how to calculate NNP at FC with GDP at MP. This is gross and we have to calculate net, so minus DAP. This is domestic product and we are asked to calculate national product, so NFIA will be added in domestic to get national product. Then this is aggregate at market price and national income is at factor cost. So MP minus NIT equals to aggregate at factor cost. So this is complete formula. Now using this formula we can find out value of national income. Let us start first. Private final consumption expenditure in this question is given 800. Then government final consumption expenditure, that is also given 200, and third part is gross domestic capital formation. Here in this question you are given net domestic capital formation, and this is 100. And we know that net domestic capital formation plus depreciation, यानी कि नेट में जब डेप जोड़ दोगे तो ग्रोस एग्रीगेट बनता है. तो आप यहाँ इसमें चाहे डेप जोड़ो और फिर बाद में वापस यहाँ माइनस कर दो, या इससे बेहतर है ये नहीं जोड़ो और उसको माइनस करना ही नहीं है. तो यहाँ हम सीधा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ही ले रहे हैं, और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो 100 है आपका. उसके बाद नेट एक्सपोर्ट जो है वो 50 है. ये तो हुए जीडीपी एट एमपी वाले ये कंपोनेंट. अब ये जीडीपी एट एमपी नहीं है, अब ये एनडीपी एट एमपी है, क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन इसमें नहीं लिया है. ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का केवल एक पार्ट दिया है और वो है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और वो सिर्फ 100 है. तो इसमें डेप्रिसिएशन ऐड नहीं है, इसलिए ये नेट है. तो ये सारे भी नेट है. एनडीपी एट एमपी है. अब एनडीपी एट एमपी है तो ऑब्वियस है
कि डेप्रिसिएशन जो माइनस किया जा रहा है वो ग्रोस में से किया जा रहा है। अब हम इसको माइनस नहीं करेंगे तो हमारा फॉर्मूला जो है वो बनेगा, इसकी जगह इसका सॉल्यूशन लिखते हैं 800 and 200 1000 1150। ये 1150 ये आपका एनडीपीएट एमपी है और इसमें से डेप की तो कोई बात ही नहीं है, एनएफआईए प्लस करना है आपको। सो एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड ये -20 गिवन है और माइनस एनआईटी जो है वो है नेट इनडायरेक्ट टैक्स एंड वी नो दैट इट इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो इसमें आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स net indirect tax is not given। तो इसको हम 0 मान लेते हैं और ये आपका 1130 ये हो गया NNP एट FC। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका NNP एट FC हो गया। अब दूसरा पूछा है एक्सपेंडिचर मेथड हो गया, दूसरा पूछा है इनकम मेथड। और इनकम मेथड से हमको क्या कैलकुलेट करना है? इनकम मेथड से हमें निकालना है GNP एट MP, GNP एट MP। ओके, एंड वी लर्न इन प्रीवियस वीडियो दैट NDP at FC have 3 components. These are compensation of employee plus operating surplus plus mixed income of self-employed, and they equal to NDP at FC। ये NDP at FC है, इससे हमको GNP at MP बनाना है। तो ये GNP at MP और ये आपका NDP at FC है। ये नेट है, इससे आपको ग्रोस पे जाना है तो प्लस डेप कर देंगे। ये डोमेस्टिक है, इससे आपको नेशनल पे जाना है तो प्लस NFIA कर देंगे। और FC से MP पे जाना है तो माइनस नहीं, अभी इसको हम प्लस करेंगे, प्लस NIT, क्योंकि ये फैक्टर कॉस्ट है और फैक्टर कॉस्ट से आपको मार्केट प्राइस पे जाना है। एंड वी नो दैट मार्केट प्राइस इंक्लूड्स इफेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडी। सो FC से MP। अब ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला बन गया और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम GNP एट MP कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दैट इज गिवन 700। देन ऑपरेटिंग सरप्लस के कुछ पार्ट्स जो है वो है आपके रेंट, फिर इंटरेस्ट, रॉयल्टी नहीं दे रखा, रेंट, इंटरेस्ट, देन प्रॉफिट। और यहां एक गौर करने वाली बात है कि प्रॉफिट के जो सब कंपोनेंट्स हैं वो गिवन है आपको। और कौन कौन से हैं ये है आपका डिविडेंड 90, देन प्रॉफिट टैक्स 30, और जो रिटेन्ड अर्निंग है प्राइवेट सेक्टर के पास, जिसको हम प्राइवेट सेक्टर की सेविंग्स भी कहते हैं, वो है 5। तो ये आपके 3 कंपोनेंट जो है ना, ये आपके ये है ऑपरेटिंग सरप्लस का एक सब कंपोनेंट यानी प्रॉफिट। ये आपका प्रॉफिट है, ये इंटरेस्ट, ये रेंट, ये इंटरेस्ट और ये प्रॉफिट। ये आपका कंप्लीट ऑपरेटिंग सरप्लस बन गया। और मिक्स्ड इनकम वो इसमें नहीं दे रखा है तो मिक्स्ड इनकम को हम 0 एज्यूम कर लेंगे। और बची हुई चीजें जो है इसमें डेप्रिसिएशन और NFIA और NIT ये तीनों जोड़ेंगे तो
डेप्रिसिएशन आपका दे रखा है इसमें वियर एंड टियर अलाउंस के नाम से, तो प्लस हो जाएगा 10। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 40, 60, 100, 700, 100, 800, 90, 30, 120, 920, 5, 925। ये 925 माइनस वियर एंड टियर अलाउंस जो है वो आपका प्लस करना है, डेप्रिसिएशन प्लस 10 प्लस NFIA है वो माइनस का 20 है, और प्लस NIT है तो NIT गिवन नहीं है इसलिए उसको 0 मान लेते हैं। ये अब आपका GNP@MP बन जाएगा 925 और 10 935 में से 20 गया 915। ये आपका GNP@MP है।